Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. We are doing chapter 8, Cell, the unit of life. Students, we have already done the cell theory, the prokaryotic, eukaryotic cells, cell wall, cell membrane, cytoplasm and the endomembrane system. In today's lecture, we will study about the double membrane bound cell organelles, that is mitochondria, chloroplast and nucleus. So let's start. Okay students, in the previous lecture, we studied about endomembrane system. There are many type of membrane bound cell organelles which collectively form endomembrane system because their functions are coordinated. We studied endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, vacuoles. Their functions are coordinated and they form endomembrane system. In today's class, students, we will study about some more cell organelles, that is mitochondria, chloroplast and the director of the cell, that is nucleus. So let's start. Okay students, this is an animal cell which is showing you different parts or different components of the cell. So we have already done, students, the Golgi complex, and we have done the endoplasmic reticulum, and we see that endoplasmic reticulum, it acts as a part of cell circulatory system and it helps in the transportation of materials. And then we see that endoplasmic reticulum is of two types, that is smooth and rough. Rough endoplasmic reticulum जो है, it is studied with the ribosomes. We have already studied about the lysosomes and the vacuoles. Today we will first of all we will study about the mitochondria. And mitochondria, they are the very important cell organelles and they are also known as the powerhouses of the cell. So let's study about mitochondria. Okay. Students, mitochondria are important cell organelles essential for aerobic respiration of eukaryotic cells. They are popularly they are known as the powerhouses of the cell because they are the center of release of energy. जो mitochondria हैं students, mitochondria जो हैं ये power houses of the cells हैं because they are the site of ATP formation. जो energy produce होती है that is produced in the form of ATP. That's why they are also known as powerhouses. So mitochondria was first of all observed by Colliker in 1880. Colliker जो है उन्होंने जो इंसेक्ट्स के जो फ्लाइट मसल्स होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया को पहले ऑब्जर्व किया, लेकिन जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो टर्म है, दैट टर्म वाज गिवन बाय सी बेंडा इन 1897. ओके, सो दिस इज ए एक्चुअल फोटोग्राफ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है स्टूडेंट्स. यहाँ पे दो आपको माइटोकॉन्ड्रियाज दिख रहे हैं फ्रॉम मेमेलियन लंग टिश्यू. सो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है वो आपको नजर आ रहे हैं. Mitochondria जो हैं they are found in nearly all eukaryotic cells. They vary in number and location according to the cell type. So mitochondria जो हैं it means mitochondria prokaryotes में absent होते हैं. They are present in all eukaryotic cell. कुछ हमारे पास exceptions हैं, जैसे जो आपका mammalian RBCs हैं उसमें आपके mitochondria नहीं होते, और single mitochondria is often found in unicellular organism. Numerous mitochondria are found in human liver cell with about 1000 to 2000 mitochondria per cell making up 1/5 of the cell volume. Students, number of mitochondria जो है ये variable होता है और ये depend करता है upon the metabolic rate of the cell. जो सेल जो है वो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, डिवाइड हो रहे हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो ज़्यादा होता है. ओके, नेक्स्ट, साइज एंड शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी वेरी करता है. माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है और शेप है वो वेरी करता है. स्मॉल रॉड लाइक भी होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द cell which shows aerobic respiration. Aerobic respiration means respiration which takes place in the presence of oxygens. साइज की अगर हम बात करते हैं तो साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में वेरी फ्रॉम सेल टू सेल. साइज जो है वो वेरिएबल है और वो डिपेंड करता है अपॉन द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द सेल. सो अगर हम एवरेज इसका सेल देखते हैं साइज का तो यूजुअली इट इज़ 0.2 माइक्रॉन टू 1 माइक्रॉन इन डायमीटर एंड 2 to 8 म्यू जो है इन द लेंथ. Okay,
So this is a very beautiful diagram, students, showing you the structure of mitochondria. So mitochondria जो हैं students, आप इनकी shape देख सकते हैं, ये granular भी होते हैं, oval shape के भी होते हैं, और sometimes ये discoidal भी होते हैं. So mitochondria के पास students ये it is formed of two membranes, two limiting membranes हैं इसके पास. Outer membrane है, और ये जो inside आपको ये folds दिख रहे हैं, that is inner membrane. So mitochondria के पास जो इसका outer membrane है वो तो continuous membrane है, लेकिन जो inner membrane है student, वो इस तरह से अंदर की तरफ जो है वो folds बना रही है. सो इनसाइड जो है वो इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड बना रही है, और इन जो फोल्ड्स हैं, इन फोल्ड्स को हम जो है वो क्रिस्टी बोलते हैं. दे आर नोन एज क्रिस्टी. ठीक है. उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, उसके आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में हमारे पास स्पेस है जिसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं. सो लेट्स स्टडी इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंड बाय टू मेम्ब्रेन्स. अभी मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास टू मेम्ब्रेन्स हैं, द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन्स क्या है? लिपोप्रोटीनेशियस हैं. आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है स्टूडेंट्स, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसके पास लेस प्रोटीन्स होते हैं, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसके पास मोर प्रोटीन होते हैं, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. ओके, इन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन वहाँ पे स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, एंड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 80 ऑंगस्ट्रोम वेट. सो ये आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो है मैंने आपको बताया इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स बना रही है. सो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये जो स्पेस है स्टूडेंट्स, इस स्पेस को हम माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं. आउटर मेम्ब्रेन जो है 60 to 75 ऑंगस्ट्रॉम थिक है, और जो इनर मेम्ब्रेन है 50 to 70 ऑंगस्ट्रॉम थिक है, और वो फिंगर लाइक और प्लेट लाइक इन फोल्ड्स बना रही है इनटू द कैविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दीज आर नोन एज क्रिस्टीज. सो ये क्या है? क्रिस्टीज हैं. क्रिस्टीज एक्चुअली क्या है? दे आर द फोल्ड्स of the inner membrane. So inner membrane जो है it is produced inward into number of folds, और उन folds को हम कहते हैं क्रिस्टीज. राइट. सो बच्चे, ये फोल्ड होने से क्या होता है कि जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है फॉर द सेल रेस्पिरेशंस. देन अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कैविटी है दैट इज फिल्ड विद फाइन ग्रेनुलर मैट्रिक्स, जो कि जेल लाइक है, और उसमें प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, सर्कुलर डीएनए भी है. माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है, राइबोसोम्स हैं 70S टाइप एंड सर्टेन ग्रेन्यूल्स. ओके, so we will do see the diagram, and then it becomes students more clear to you. Then students, under the high resolving power of electron microscope, studies have shown numerous stalked knob-like projections, and they are known as elementary particles, or they are known as oxysomes. What are oxysomes, students? Agar I will draw it again. Suppose this is outer membrane and this is inner membrane which is folded and which is forming the crystals. So इसके ऊपर student यहाँ पर हमें एक छोटे छोटे इस तरह से stalk like structures होते हैं. इनका एक head portion है, then they have a tail and they have a base plate. और ये जो bodies हैं, इन bodies को हम बोलते हैं F0, F1 particles, and they are also known as oxysomes. राइट. सो ऑक्सीजोम्स क्या है? ऑक्सीजोम्स जो हैं, जो इनर मेम्ब्रेन है जो फोल्ड बना रही है, सो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. सो ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं इस तरह से हमारे पास प्रेजेंट है. दीज नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर नोन एज रैकर्स पार्टिकल्स, दे आर ऑल्सो नोन एज F0, F1 पार्टिकल्स, दे आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजोम्स. ईच पार्टिकल जो है, अभी मैंने आपको बताया, ईच पार्टिकल जो है इसका जो ऑक्सीजोम है उसका एक हेड है. देन दिस पार्टिकल इट हैज़ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एंड देन इट हैज़ इट्स बेस. सो इट इज़ लाइक दिस, एंड दिस इज द हेड ऑफ द ऑक्सीजोम. राइट. इस तरह के पार्टिकल्स जो हैं प्रेजेंट हैं, और इनके पास ये जो पार्टिकल्स हैं दे हैव ऑल द एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है. वो एक प्रोसेस है किस तरह से माइटोकॉन्ड्रियाज जो हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. तो इनको हम ETP भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स. आपको मैं अभी इनका डायग्राम शो करती हूँ, आपको एक क्लियर हो जाएगा. स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो यू कैन सी इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स बना रही है. ठीक है. दैट आर दीज फोल्ड्स आर नोन एज क्रिस्टीज.
राइट। सो इसके बीच में स्टूडेंट ये आपको यहाँ पर ये जो आपको छोटे छोटे नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, सो ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम F1 पार्टिकल्स बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजोम्स। और ये जो पार्टिकल्स हैं स्पेशली ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमें क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सो इसके अंदर ये दे हैव द एंजाइम्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देन उसके बाद जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास अपना जो है वो डीएनए है, या आप डीएनए देख सकते हो, दोनों मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, दैट इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, एंड दिस इज एक्चुअली ऑक्सीजोम एंड इट हैज एफ, दिस इज द हेड पोर्शन एंड दिस बेस इज द, एंड दिस इज द स्टॉक, और यहाँ पर उसका क्या होता है, बेस होता है। Okay, now let's try to study the important functions of mitochondria. The most important function of mitochondria is it produces the energy. अभी मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रियाज जो हैं इनको सेल का पावर हाउस बोला जाता है, और स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रियाज जो होते हैं ये सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी ऑटोनॉमस? सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? दिस इज, आई विल राइट इट हियर, सेमी ऑटोनॉमस। What do you mean by semi-autonomous? Mitochondria के पास, mitochondria contain all requirements of protein synthesis. Mitochondria के पास राइबोसोम्स हैं, अभी हमने देखा, उसके पास अपना डीएनए है जो कि मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करेगा जब उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। देन माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास एटीपी है टू प्रोवाइड एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रियाज जो है वो अपना प्रोटीन्स बना सकते हैं, बट स्टूडेंट फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स ये जो न्यूक्लियस का जो डीएनए है उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो इनके पास अपना डीएनए है, ये कुछ प्रोटीन्स बना सकते हैं, बट दे आर डिपेंडिंग अपॉन न्यूक्लियर डीएनए फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोटीन, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रियाज जो है उनको हम सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउसेस हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो जो हमारा हमने फूड खाया, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन्स, और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सो सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूट्रिशन जो सेंड टू माइटोकॉन्ड्रिया आर टू प्रोसेस एंड दे कंबाइन विद द चार्ज मॉलिक्यूल। चार्ज मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ और वे क्या प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं, और इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको हम एटीपी मिल्स भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर द साइट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। देन माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स द सेल टू मेंटेन प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करते हैं इन बिल्डिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ ब्लड, और कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जैसे टेस्टोस्टेरॉन है, मेल सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, ठीक है, उसको बनाने में हेल्प करते हैं। और जो लीवर सेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैव स्पेशल एंजाइम्स दैट डिटॉक्सिफाई द ammonia. So these are the important functions of mitochondria. So students, that's all about mitochondria. Now let's study the next cell organelle, that is known as the chloroplast. क्लोरोप्लास्ट जो है स्टूडेंट्स, जो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल्स में हमें मिलते हैं, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं, एंड दे हैव अ स्पेशल ग्रीन कलर पिगमेंट that is known as chlorophyll, which is essential for the photosynthesis. And you all know that photosynthesis is a process by which the green plants makes their food. Okay, so this is a diagram of a chloroplast, and we will study its structure in detail. Like mitochondria, chloroplast also has two membranes, the outer membrane and the inner membrane, and both these membranes are lipoproteinaceous. Outer has less protein and it is more permeable, whereas the inner membrane has more proteins but it is semi permeable in the nature. और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में हमारे पास स्पेस है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल के मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस था, सेम यहाँ पे भी स्पेस होता है। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट जो है बच्चे, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है प्लास्टिड। जो टर्म प्लास्टिड है वो हैकल ने, किसने कॉइन किया था? टर्म प्लास्टिड जो था दैट वाज कॉइन्ड बाय हैकल। जस्ट वेट स्टूडेंट्स, आई विल राइट इट अगेन. So it was coined by Haeckel in 1866. So term जो है इसको किसने कॉइन किया था? हैकल ने कॉइन किया था in 1866. ठीक है, टर्म प्लास्टिड्स। और ये जो प्लास्टिड्स होते हैं बच्चे, ये कलरलेस भी होते हैं और कलर्ड भी होते हैं।
तो सबसे पहले अगर हम एमाइलोप्लास्ट देखते हैं, एमाइलोप्लास्ट क्या है, एक तरह के कलरलेस प्लास्टिड है, लार्ज साइज के होते हैं और ये प्लांट्स के वो वाले पार्ट्स में हमें मिलते हैं विच आर नॉट एक्सपोज टू लाइट, जैसे जो रूट्स हो गया या सीड्स हो गए, जो प्लांट के पार्ट्स लाइट को एक्सपोज नहीं होते, सो उसमें जो प्लास्टिड होते हैं वो कलरलेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो हैं वो स्टार्च को स्टोर करते हैं एंड मोस्टली जो है पोटैटो ट्यूबर्स में या रूट्स में ये हमें मिलते हैं। सो एमाइलोप्लास्ट जो है दे आर द एग्जाम्पल ऑफ कलरलेस प्लास्टिड्स। इसी तरह से क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है ये कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, ठीक है, दे आर कलर्ड प्लास्टिड और ये दे आर फाउंड इन दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच आर एक्सपोज टू लाइट, जैसे लीव्स हो गए हैं, फ्लावर हो गए हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। सो यहाँ पे जो मोस्टली ये पिगमेंट स्टोर करते हैं फॉर द फ्रूट्स एंड फॉर द फ्लावर्स। देन थर्ड इज द क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट जो है स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट क्या है, दे आर ग्रीन कलर के जो हैं वो प्लास्टिड हैं, इनके पास क्लोरोफिल है एंड दे आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। In the leaves, other green structures of plants and in the eukaryotic algae जो chloroplast जो हैं वो present होते हैं and they are the most common type of plastids which are found in the photosynthetic mesophyll cells of the leaf। अभी मैं आपको next डायग्राम शो करती हूँ स्टूडेंट्स, वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द लीफ स्ट्रक्चर। सो जब हमने लीफ की एनाटमी देखी तो हमने देखा कि लीफ के पास पैलिसेड सेल्स हैं और स्पॉन्जी सेल्स हैं। सो पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो मिजोफिल है उसके अंदर ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। सो दीज क्लोरोप्लास्ट दे आर द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द लीव्स, in the green stems and they are also present in euglena but they are absent in animals, fungi and in the bacteria. So this is another diagram showing you chloroplast. So chloroplast student, अभी मैंने आपको बताया कि chloroplast जो है उसके पास भी two membranes हैं, outer membrane है और inner membrane है, and lipoproteinaceous membrane है। outer membrane has less proteins and it is more permeable, whereas जो inner membrane है it has more proteins and it is semi permeable। और center में जो है ये stroma है, stroma है, इसको हम matrix भी बोलते हैं। तो एक तरह से ये ground substance है जो कि inner membrane के inside present होता है। तो इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें राइबोसोम्स हैं एंड देन इसके पास डीएनए भी है, ये भी सेमी ऑटोनॉमस है। मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेमी ऑटोनॉमस है, उसके पास अपना डीएनए है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी सेमी ऑटोनॉमस है, उनके पास भी कंप्लीट मशीनरी है अपना, तो लेकिन वो कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं, बट फॉर अदर टाइप ऑफ द प्रोटीन्स दे डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियस डीएनए, इसीलिए हम उसको सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं, राइट। सो अभी हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर और क्या है। सो दे आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, डबल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स टू फॉर्म अ स्टैक जिसे हम ग्रेना बोलते हैं, और उसका स्ट्रोमा मैंने अभी बताया जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स जो इनर मेम्ब्रेन है, let's study this diagram, now it is more clear to you। So this is the outer membrane and the inner membrane, the two membranes are clear to you and the ground material is known as matrix, ठीक है। दिस इज ग्राउंड मटेरियल, ग्राउंड मटेरियल जो है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये ग्राउंड सब्सटेंस है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, राइबोसोम्स हैं, सर्कुलर डीएनए है, राइट, देन मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, वाटर है, मिनरल्स हैं। सो ये सारे एंजाइम्स जो हमें चाहिए वो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। उसके बाद सेकेंड आ रहा है ग्रेना। वॉट इज़ ग्रेना? जो इनसाइड मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट हो रही है अंदर की तरफ, और वो इस तरह से स्टूडेंट्स ओवल शेप्ड के इस तरह से फ्लैटेंड ऐसे सैक्स बना रही है, इस तरह से जैसे हम कॉइन्स का पाइल बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर कॉइन्स रख के हम एक टॉवर बना लेते हैं, तो इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट होके इस तरह से स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रही है। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ग्रेनम। सो प्लूरल है इसका ग्रेनम और सिंगुलर है ग्रेना। और ये स्ट्रक्चर जो, अगर सपोज हम एक स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसमें से यहाँ पे मैंने 4 बनाए हैं, तो अगर आप वन सिंगल देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं थैलाकॉइड। सो थैलाकॉइड्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो व्हाट इज थैलाकॉइड स्टूडेंट्स? आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। जो इनर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का वो इन्वेजिनेट हो रहा है और बहुत सारे ओवल शेप्ड क्लोज्ड सैक्स बना रहा है। इन क्लोज सैक्स को जो है हम बोलते हैं थैलाकॉइड्स। सो दीज आर थाइलाकॉइड। सो ये थाइलाकॉइड जो है ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। तो ग्रेनम क्या होगा, जब बहुत सारे थैलाकॉइड जो हैं इस तरह से वो पाइल हो जाएंगे
एक टॉवर लाइक पाइल हो गया, इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया, सो इसको हम बोलेंगे ग्रैनम, राइट। सो इस ये जो ग्रैनम है थैलाकॉइड में है, इसके पास सारे रिक्वायरमेंट्स हैं लाइट रिएक्शन के, जो फोटोसिंथेसिस होगा, इसके पास क्लोरोफिल हैं, कैरोटिनॉइड्स हैं, प्लास्टोसाइनिन है, जो पिगमेंट्स हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए वो किसके पास है, थैलाकॉइड्स के पास है, ठीक है। और थैलाकॉइड्स के पास स्टूडेंट्स एक स्पेशल बॉडीज़ भी होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक स्पेशल बात बता रही हूँ कि जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है वहाँ पे छोटे छोटे राउंड जो हैं वो क्रिस्टलाइन छोटे छोटे बॉडीज़ होते हैं, इन बॉडीज़ को हम क्वांटोसोम्स कहते हैं, ठीक है। दैट इज दे आर नोन एज, आई विल राइट इट हियर, दीज बॉडीज आर नोन एज क्वांटासोम्स, ठीक है, दिस इज नोन एज क्वांटासोम्स, ठीक है। ओके, जस्ट वेट। So these are small bodies which are present on the thylakoids and these are known as quantosomes. और क्वांटोसोम्स जो हैं ये एक्चुअली फोटोसिंथेटिक यूनिट हैं जो क्या करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है। सो क्वांटोसोम्स क्या है स्टूडेंट्स, जो इनर साइड है थैलाकॉइड का, वहाँ पे स्मॉल राउंड छोटे छोटे बॉडीज होते हैं जिससे हम क्वांटोसोम्स कहते हैं। एंड क्वांटोसोम्स एक्चुअली फोटोसिंथेटिक यूनिट हैं जो ट्रैप करते हैं क्वांटम ऑफ लाइट को, ठीक है। आई थिंक स्टूडेंट्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज वेरी क्लियर टू यू। Two membranes, outer membrane, inner membrane, and then we have the matrix which is also known as stroma, और inside wall जो है वो क्या बना रही है, ग्रैनम। सो ग्रैनम कैसे बना, बहुत सारे थैलाकॉइड से बना। थैलाकॉइड्स जो कि एक ओवल शेप क्लोज सैक्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड हैं, एक टॉवर लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम। और थाइलाकॉइड्स जो हैं दे आर द स्ट्रक्चरल एंड दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, राइट। सो दिस इज द स्टैक ऑफ थैलाकॉइड्स, ओके। सो क्लोरोप्लास्ट जो है, लेट अस स्टडी देयर इंपॉर्टेंट फंक्शन। स्टूडेंट क्लोरोप्लास्ट जो है दे आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो क्लोरोप्लास्ट जो है इनको हम सेल का क्या बोलते हैं, किचन बोलते हैं। किचन इज द प्लेस वेयर द फूड इज कुक्ड, ओके। सो क्लोरोप्लास्ट इज द प्लेस जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स आर मेकिंग देयर फूड, सो दे आर ऑल्सो नोन एज द किचन ऑफ द सेल्स। वो एटीपी जनरेट कर रहे हैं एंड शुगर बना रहे हैं, दे आर सिंथेसाइजिंग द शुगर दैट इज ग्लूकोज। कैसे बन रहा है, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, जो सोलर एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है इनटू द केमिकल एनर्जी, और शुगर्स बन रहे हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हाउ द फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस, यू नीड कार्बन डाइऑक्साइड, यू नीड वाटर in the presence of sunlight and the chlorophyll. What the plants are giving to us, they are making the food and they are producing their food in the form of glucose and oxygen gas is produced. So chloroplasts जो हैं they are the site of photosynthesis. So they are called the kitchen of the cells, and I also told you they are semi-autonomous. अभी मैंने बताया semi-autonomous है, इनके पास अपना complete machinery है, अपना DNA है, RNA है, ribosomes है, और वो कुछ proteins बनाते हैं. But for other proteins they are depending upon the nucleus DNA. So that's why they are known as semi-autonomous structures. Okay. सो ये आपको दिखाया कि किस तरह से सेमी ऑटोनॉमस है, मूविंग, चेंजिंग शेप, डिवाइडिंग, एंड दे कैन रिप्रोड्यूस. हु एल्स डिवाइड्स, लाइक बैक्टीरिया, और इसी तरह से डिवाइड करते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट. उसका 3D व्यू है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, देन उसका स्ट्रोमा है, और यहाँ पर आप पाइल्स देख रहे हैं विच इज़ ग्रैनम. सो एंड ईच यूनिट ऑफ द ग्रैनम इज नोन एज थाइलाकॉइड. Okay students, that's all about chloroplast. Now next we will study about the next very important cell organelle, which is the CPU of the cell, which is the director of the cell, and that is nothing but nucleus. So nucleus is the most important component of the cell. सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है, दैट इज न्यूक्लियस. सो इट इज़ द डायरेक्टर ऑफ द सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल विच इज़ डायरेक्टिंग and which is controlling all the cellular functions. Nucleus is present in the eukaryotic cells. प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता. कुछ मेच्योर सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे मैमल्स के रेड ब्लड सेल्स हैं, फूड कंडक्टिंग फ्लोएम सेल्स जो कि सीव ट्यूब्स हैं, उसमें न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता. न्यूक्लियस इज़ द कैरियर ऑफ द हेरिडिटी मटेरियल. जो न्यूक्लियस है उसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडिटी मटेरियल है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है. और न्यूक्लियस जो है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन
इन 1831। तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था इन 1831 इन द रूट सेल ऑफ ऑर्किड्स। ऑर्किड का जो सेल है उसकी रूट सेल है ऑर्किड का, उसमें सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। So these are the different part of the nucleus. Student, you can see this. So this is nucleus has outer membrane जो nucleus का envelope है. Then nucleus के अंदर ये आपको pores दिख रहे हैं nuclear membrane के अंदर. These are known as nuclear pores. Then उसके अंदर हमें एक dark body दिख रही है which is known as nucleolus. And then you can see the thread-like mesh, and that is known as chromatin. So let us study different parts of the nucleus one by one. So ये आपका different clear diagram है students. nuclear envelope है, nucleus के अंदर nucleolus दिख रही है. Then आपके पास जैसे cell के पास cytoplasm है, then you have nucleoplasm. This is nuclear pore, and then this is the chromatin. Okay. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट हो रहा है साइटोप्लाज्म से बाय न्यूक्लियर एनवेलप. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी डबल लेयर है, सेमी परमेबल है. आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, दैट इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस. सो न्यूक्लियर जो है वो दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और उसके बीच में स्पेस है. आउटर सरफेस जो है उसके पास राइबोसोम्स हैं और इनर वाली जो होती है वो स्मूथ होती है. स्टूडेंट्स यू रिमेंबर ईआर, मैंने आपको बताया था कि ईआर कैसे ओरिजिन हो रहा है फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. सो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किसके साथ कनेक्टेड है? आउटर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज इट हैज राइबोसोम्स आल्सो. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, वो सर्कुलर भी होते हैं, पॉलीगोनल भी होते हैं, एंड इट हैज़ अ डायमीटर अबाउट 40 to 100 mm. सो न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, जैसे मैसेंजर आरएनए जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है तो पोर्स की हेल्प से जो है वो बाहर निकल के आता है, वो एक पैसेज फॉर्म करते हैं. ठीक है, वो रेगुलेट करते हैं पैसेज ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और दे ऑल्सो रेगुलेट द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन. सो पोर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर की आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. सो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो आप देख सकते हो, वो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज स्टडीड विद द राइबोसोम. सो दिस इज RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट. सो ये आपका न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर ये जो आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर नोन एज न्यूक्लियर पोर्स. Then second part is the nucleoplasm. What is the nucleoplasm? This is all nucleoplasm. जैसे सेल के अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म होता है. नाउ न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस कंटेन्स अ विस्कस फ्लूइड है. द न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस को टर्जिड रखता है, इसमें एंजाइम्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जैसे डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज हैं, मेटलाइंस हैं, हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हैं. सो ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? इनसाइड टू द न्यूक्लियर इनर मेम्ब्रेन के अंदर है. ठीक है, और न्यूक्लियर जो ये एक फाइब्रस मेशवर्क भी बना रहा है, दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द न्यूक्लियस. इसको हम न्यूक्लियस लेमिना भी बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट जो हम न्यूक्लियस के अंदर जो हमने स्टूडेंट्स, अभी फिर से हम डायग्राम के पास जाएंगे, तो ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, बहुत फाइन लॉन्ग थ्रेड्स हैं, दिस इज नोन एज क्रोमैटिन. सो लेट्स स्टडी अबाउट क्रोमैटिन. सो क्रोमैटिन मीन्स कलर्ड मटीरियल है. एबिलिटी ऑफ दिस मटीरियल टू टेक अप, ये स्टेन लेता है, कलर्ड मटीरियल है, डार्कली स्टेन्ड होता है, नेटवर्क ऑफ लॉन्ग फाइन थ्रेड्स, इसको हम क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं. नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस में हमें ये फाइन फिलामेंट्स की तरह नज़र आते हैं. सो मेजर प्रोटीन्स ऑफ क्रोमैटिन्स हिस्टोन्स के मिलकर बने हैं, स्मॉल प्रोटीन है, कंटेनिंग हाई पोर्शन ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड, दैट इज आर्जिनिन एंड लाइसिन. सो ये जो हैं आपके प्रोटीन्स जो हैं, दे फैसिलिटेट बाइंडिंग विद नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स. सो ये जो आपका क्रोमैटिन है स्टूडेंट्स, ये दो टाइप का होता है. एक तो बहुत डार्क स्टेन्ड होता है, उसको हम हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं, और एक लाइट स्टेन होता है, उसको हम यूक्रोमैटिन बोलते हैं. सो ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलके बनते हैं. और हमने सेल डिवीजन में देखा कि कैसे जो क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है बाय डिहाइड्रेशन, और क्रोमैटिन क्या बनाता है? क्रोमैटिन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. सो हमारे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, और क्रोमोसोम्स हमने देखा कि क्रोमोसोम्स जो है उसके पास, हर एक क्रोमोसोम जो है उसके पास दो सिस्टर्स होती हैं,
सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और क्रोमोसोम्स के पास एक सेंटर में जो कॉन्स्ट्रिक्शन मैंने बनाई है उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं. दिस वी हैव ऑलरेडी डन. एंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द जो हमारा सेंट्रोमियर है उसकी पोजीशन कहाँ पे है. सेंट्रोमियर जो है कई बार बिल्कुल लास्ट में, एंड में सेंट्रोमियर होता है. अगर हम क्रोमोसोम देखें तो सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल लास्ट में होती है, इसको टर्मिनल कहते हैं. सो ये टीलोसेंट्रिक होता है. कई बार जो सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर में होती है, दोनों क्रोमेटिड्स के सेंटर में सेंट्रोमियर है, तो इसको हम मेटासेंट्रिक बोलते हैं. ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन कि सेंट्रोमियर का पोजीशन कहाँ है, वो टर्मिनल हो सकती है, सब टर्मिनल हो सकती है, सेंटर में हो सकती है. सो क्रोमेटिन जो है वो लेटर ऑन कंडेंस होकर क्या बनाती है, क्रोमोसोम्स. देन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस हमने देखा. न्यूक्लियोलस वॉज डिस्कवर्ड बाय फोंटेना इन 1781 और टर्म न्यूक्लियोलस जो है वो बोमेन ने दिया 1840 में. इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ लिमिटिंग मेम्ब्रेन. उसके बाहर कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं है. क्रोमेटिन और ग्रेन्यूल्स हैं उसके पास, और फिब्रिल्स हैं आरएनए और प्रोटीन के. न्यूक्लियोलस के पास डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स हैं, एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूक्लियोलस इज मेंटेन्ड बाय कैल्शियम आयंस. सो वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है. हमने देखा जब सेल डिवाइड करता है तो लेट प्रोफेज में जो न्यूक्लियोलस जो है वो डिसऑर्गेनाइज होता है, और टीलोफेज जब आती है सेल की, जब साइटोकाइनेसिस से पहले टीलोफेज आता है तो न्यूक्लियोलस जो है वो रीअपियर हो जाता है. सो व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस. मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस जो है वो क्या है, सेल का डायरेक्टर है. ठीक है. उसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर्स. और न्यूक्लियस जो है वो एक कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स. न्यूक्लियस ऑल्सो राइबोसोम्स फॉर्म करता है ऑन इट्स न्यूक्लियोलस, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर सेल डिवीजन, फॉर ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन. दैट्स वाई हम न्यूक्लियस को जो है सेल का डायरेक्टर बोलते हैं. So this is a very beautiful diagram student, very clear. This is the nucleolus, और उसके अंदर आप ये क्रोमेटिन देख रहे हो जो फाइन थ्रेड नेटवर्क दिख रहा है. Then this is the outer membrane, nuclear pore is there, and the rough endoplasmic reticulum which is attached with the nucleus, and this is our inner membrane. So nucleoplasm, let's say cell का cytoplasm है, nucleus has nucleoplasm. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर. आज हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज डिस्कस किए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल, देन द क्लोरोप्लास्ट, द किचन ऑफ द सेल, एंड फाइनली द न्यूक्लियस विच इज़ द डायरेक्टर ऑफ द सेल. आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको समझ आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.